नो? Yes, sir. Good morning. ओके। बाकी सब कहाँ है? ओके, ना आई एम आस्किंग बाकी सब कहाँ है? आर अदर्स गोइंग टू ज्वाइन? Maybe yes. मे बी यस। Okay, so before just going to the last topic of our subject, uh, let's just discuss. First of all, file system has been covered in your expert lecture, right? I hope it is. अगर याद हो तो. Yes. Okay. And chapter number 1, chapter number 3, and chapter number 5 is covered by me, right? मतलब chapter number 3 का भी एक topic बाकी है, but दो. Chapter number 1, 3, and 5 is covered by me. And second chapter, fourth chapter, and the sixth chapter must be covered by Jaisal madam. Yes, sir. Okay. So, uh, okay. So again, just saying that chapter number 1, 3, and 5 is covered by me. This was covered in expert lectures, and sixth chapter, fourth chapter, and second chapter is done by Jaisal madam. It is covered by Jaisal madam. So now in your this uh, for second unit test, your syllabus will be this fourth chapter onwards. Okay, fourth chapter onwards. The unit test 2 will be having this chapters included. That is 4, 5, 6, 7, 8. Okay, first three chapters हम शायद नहीं लेंगे. Okay, so make sure that you are good with it. Okay, वो क्या इच्छा है आपकी? पूरा सिलेबस रखना चाहिए कि सिर्फ पीछे के चैप्टर्स रखने चाहिए? सिर्फ पीछे का सर. सिर्फ पीछे का क्यों? आगे पीछे के मैं फोर्थ चैप्टर से तो लूंगा ही लूंगा फॉर श्योर. ठीक है ना? ओके, सो योर सिलेबस विल बी फोर्थ चैप्टर ऑनवर्ड्स, राइट? ये सारे आपके यूनिट टेस्ट 2 में सिलेबस रहेगा. सर ओके फाइन. पेपर पैटर्न कैसा होगा? जो लास्ट टाइम था. ओके। एंड या जो लास्ट टाइम था वही पेपर पैटर्न फॉलो होगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस जो हम देख चुके हैं. एंड प्रोबेबली वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3, दैट इज डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी एक डिवीजन में हो चुका है, दूसरा डिवीजन में बाकी है. वी आर हैविंग बोथ ऑफ द डिवीजन 1 and 2. Yes. Okay, so I don't know in which division is left, but कोई एक division में बाकी है. So today I'm just covering dining philosopher problem, and then we are done with our subject, and then you can ask whatever questions you want to ask regarding any topic. So let's begin. Let me just first complete the last topic, and that is dining philosopher. Okay. I don't know मतलब जिस भी division में चला, I don't know, I don't remember पर अच्छे से चला है कि नहीं, but again it will be good if you can understand and have a look at it. So dining philosopher problem कहता क्या? Okay, so it is again a standard problem of resource sharing or shared resources or critical resources.
बट ये सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं रियल लाइफ में मैच करके ये लोग बोलते हैं, राइट? सो इट इज सेड दैट डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, बट व्हेन यू गो इनटू योर कंप्यूटर वर्ल्ड यू कैन मैप द इशू कि इस टाइप से अगर एक्सेस हो तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं. सिमिलरली प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, एंड दिस डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम. सो डाइनिंग फिलोसोफर है यानी डाइनिंग टेबल है और एक फिलोसोफर है, एक नहीं कई फिलोसोफर है. सो लेट्स से वी आर आई एम हैविंग अ टेबल, ओके, एंड इन द सेंटर ऑफ टेबल पंजाबी थाली रखी हुई है, ओके, फुल फ्लैश पंजाबी थाली, बकासुर थाली, ओके, जो 1500 रुपए की आती है ना, बकासुर थाली जिसमें 8 लोग एक साथ खा सकते हैं, राइट? तो एक थाली बीच में रखी हुई है, okay, and the philosophers are sitting around it. So let's say my philosopher P0 is sitting here, let's say my philosopher P4 is sitting here, uh, P3 is sitting here, P2 is sitting here, and P1 is sitting here, okay. अब इशू क्या है कि बकासुर थाली खाने के लिए हमें चम्मच चाहिए, तो इंग्लिश में स्पून कहते हैं बट वी विल से फॉक, ओके, हम फॉक यूज करेंगे सब. और ईच एंड एवरी फिलोसोफर आर फ्रॉम ब्रिटिश, right? So they don't use spoon, they are using fork to eat your thali. So but the issue is there is one fork kept between P1 and P0. Let's say that is F1 fork, one is kept here, F0 fork, one is kept here, F4 fork, one is kept here, F3 fork, and one is kept here, F2 fork. So as we know that to eat from single fork, it is very difficult, right? So these guys are using two forks to eat this thali. So P0 will need F1 and F0 fork to eat. P1 will need F1 and F2 fork to eat. P2 will need F2 and F3 forks to eat, right? And there is one scenario that here all the philosophers are first picking the left fork. P2 है तो पहले F2 fork को उठाएगा, फिर F3 fork को उठाएगा. P3 will first pick the F3 fork, then he will pick the F4 fork. So everyone is picking up the left fork first, okay. So here this philosopher, ये जो philosophers बैठे हैं यहाँ पे, right? So the basic task is of philosopher is what? To think, okay. और सोच के थक जाते हैं तब ये खाते हैं, okay? Once they are fed up of thinking they will start eating. So these are the two tasks which this philosopher guys are performing: thinking and eating. सोचो और खाओ. And then the algorithm or pseudocode which I can say that is void, philosopher and void. मैं short में PH लिख रहा हूँ for philosopher. Okay, so while true, uh, unconditional loop, right? That is always going to true. So first task of philosopher is thinking. So they are in thinking process. So एक process है जो thinking है जो call हुई. And then once they are out of this thinking process, what they will do? Obviously they need to eat, right? So खाने से पहले क्या टास्क होगा? Fork उठाना, right? खाने से पहले हम चम्मच उठाते हैं, ये philosopher forks उठाएंगे. So what they will do? They will, as I said, they will pick up the left fork first. So यहाँ पे है take fork, okay? Take fork in bracket I. So let's say P0 है, P0 है, तो अब I का मतलब क्या होगा? 0. That means he will pick F0 fork. ओके, पहले लेफ्ट फॉर्क पहले उठाएगा, F0 फॉर्क, एंड देन टेक अंडरस्कोर फॉर्क. यहाँ पे छोटा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, दैट इज I प्लस 1 मोड n. ओके, तो यहाँ I की वैल्यू क्या है? 0 प्लस 1 मोड n. मोड n मतलब द टोटल नंबर ऑफ फॉर्क्स. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फॉर्क्स हियर? 4. 0 to 4, n, हम n की वैल्यू 4 है. Okay, my bad, not total number of forks. You are correct. Total number of forks are 5, but the value of n is 4. Last F0 to F4, मतलब n की value 4 है, last value, right? So we are having 4 here. Okay, we are having 4 here. Is it correct? Okay. So let's say 4 here. So 0 plus 1, 1. Now word 1 mod 4. क्या होगा आंसर? What will be the answer of 1 mod 4? 1. Obviously, right?
So 1. So P0 will pick F1 fork. यानी कि वो राइट साइड वाला fork pick करेगा, right? So here typically what is happening here? Here he is picking left fork and here he is picking the right fork. Right? He is picking the left fork, then he is picking up the right fork. अब दोनों fork जब हाथ में ले लिए, he will start what? Eating. And once he is done with eating, he will simply put the forks one by one. Put fork I and put fork, same formula, I plus 1 mod n. Okay, task is done. Okay, now tell me guys, what is the issue here? प्रॉब्लम क्या है? मैंने डाइनिंग फिलोसोफर बता दिया, प्रॉब्लम क्या है? जिस डिवीजन में नहीं चला है वो डिवीजन के बच्चे आंसर देंगे तो अच्छा, और डिवीजन जिस डिवीजन में चल चुका है अगर वो नहीं दे पाए तो बहुत बुरा है. Yes, so where is the problem here? This is the algorithm, this is the steps or the task they are doing, pseudocode what they are doing, right? So what is the problem here? क्या problem हो सकता है यहाँ पे? सारे फिलोसोफर एक साथ नहीं खा पाएंगे. वो तो खा ही नहीं पा सकते बिकॉज हमारे पास लिमिटेड फॉर्क है, 5 फॉर्क है, 10 हाथ है, राइट? सो वी आर हैविंग 50% ऑफ रिसोर्सेज, 50% रिसोर्सेज में काम चलाना है तो ऑब्वियसली शेयरिंग करना है. मतलब किसान का ऐड आता था ना, मम्मी ने शेयरिंग नहीं सिखाया. So here we this philosopher has learned sharing. So they are sharing the F1 and F2 forks, or F2 and F3 forks, or F3 and F4 forks. तो क्या होगा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम? अभी तक हम सब कुछ देख चुके हैं ये शेयरिंग वाले में क्या प्रॉब्लम होगा? दैट इज ट्रू दैट एक साथ सब फिलोसोफर तो नहीं खा सकते बिकॉज ऑब्वियसली वी आर हैविंग 50% ऑफ रिसोर्सेज. 10 हाथ है, 5 फॉक्स है, सो ऑब्वियसली at a time only 2 philosopher will be eating. So tell me guys, what is the issue here? क्या issue होगा यहाँ पे? Be quick. कौन से डिवीजन में ये डाइनिंग फिलोसोफर चल चुका है? सबको एक एक करके कॉल करके बुलाना पड़ेगा. नुपुर, ध्वनि, राहुल, ध्रुवी, पार्थ, बोथ ऑफ द पार्थ. आखिरी लेक्चर है गाइस, आज तो रिप्लाई कर दो. सब टेक्निकली आखिरी नहीं है बट सिलेबस वाइज आखिरी लेक्चर है. जिनमें Yes, sir. प्रॉब्लम हो, मतलब जिनमें ये प्रॉब्लम चल चुका है वो तो रिप्लाई कर रहे हैं एटलीस्ट. व्हाट इज द इशू हियर? Okay, I'm not going to waste time then. Okay, the issue is simple. Let's say P0 is trying to pick F0 fork and he got preempted. And then P1 came. Now he's trying to uh, pick P1 F1 fork. Okay, done. F1 fork उसने उठाया and then he got preempted. Or let's say he didn't got preempted. Okay, and उसने फिर F2 fork भी उठा लिया. Okay, P1 has picked F1 and F2 fork. Now P0 came back after preemption. तो उसने F0 fork तो already उठाया था. Now he will try to F1 fork. He will try to pick F1 fork also. So what is the scenario? दो फिलोसोफर लड़ेंगे एक fork के लिए कि मैं खाऊंगा पहले, right? दोनों फिलोसोफर लड़ेंगे. So hence what will occur? Race condition. Okay,
Race condition will occur. So obviously, if there is a race condition, hence we are having some shared resources, right? If we are having some shared resources, that means it's a critical section. And if it's a critical section, we need a solution like semaphore for synchronization, right? एक बार में दो फिलोसोफर झगड़े नहीं, बारी बारी से दोनों फिलोसोफर एक फॉग को शेयर करें, ठीक है? एंड डोंट वरी गाइस, यहाँ ये फिलोसोफर्स आर टू फ्रेंडली, दिस फिलोसोफर एक दूसरे का झूठा फॉग यूज करेंगे. Okay, so this philosophers are sharing some forks, right? So this synchronization need to be done. हम synchronization के लिए क्या कर सकते हैं? Semaphore use कर सकते हैं till known best solution, right? And most famous one. So again, short review. At a time, if two or more philosophers come into the scenario, then one fork will be in need by two philosophers, and hence race condition comes, and our fork is a shared resource. Hence, we need a solution to synchronize those access to the forks, right? So यानी ये जो task है, okay, let me highlight it. This task which I'm highlighting, right? Red color task. This is your critical task, right? Critical section task है ये आपका. So you need to do the scenario of semaphore, locking or anything else. So we will see the solution using locking. Sorry, semaphore. हम semaphore से इसे solve कैसे कर सकते हैं? Okay, so let's zoom out. Okay, so now let's see the solution using the semaphore. How we can solve this problem using semaphore. Okay, how we can using. So here I will be using binary semaphore. Okay, here I will be using binary semaphore, and the algorithm goes something like this. Void, मैं philosopher को PH लिख रहा हूँ short में void. Okay, please pardon my bracket issues. Okay, यहाँ पे while true same रहेगा. Okay, the process of thinking is a not critical task, right? So सोचने दो सबको. Now what they will do, the rule here change. Wait table fork si, wait table fork s I plus 1 mod n, same formula. Okay, same formula. Okay, and then they are allowed to eat. Okay, and then they are allowed to eat, then signal. Okay, put fork I, signal, put fork I plus 1 mod n. Okay, and done. Okay, and done. So what this guy is, see, our eating is not a critical task, but picking up that fork is our critical task. तो हमने उसे यहाँ पे कंट्रोल किया है. Okay, हमने उसे यहाँ पे कंट्रोल किया है. And you can see that how you can see how we are going to do. So basically we are going to use 5 semaphore. Let's say S0, S1, S2, S3, S4, S5, representing if F0 is free or not, if F1 is free or not, if F2 is free or not, if F3 is free or not, if F4 is free or not. Okay, ये extra मैंने क्यों लिख दिया इसको? Okay, right? ये सारे forks के लिए हमने एक एक semaphore allocate किया, and make note that this all are binary semaphore. This all are binary semaphore. Initially, a value of each semaphore is 1. 1 का मतलब this fork is free. Okay, no one is claiming. So
what will happen? What will happen? Let's say P1 comes. Sorry, P0 comes. तो P0 को fork खाना मतलब he wants to eat. तो उसे कौन सा fork चाहिए होगा? F0 and F1. तो उसे claim क्या करना पड़ेगा? Semaphore 0 and semaphore 1. If P1 wants to eat, he will claim S2, S1 and S2. If P2, then he will do S2 and S3. P3, S3, S4, and P4, S4 and S0. सी यहाँ पे S0 कैसे आता है पता है? ये I है, I equals to 4. So I plus 1 mod n. ओके, I plus 1 mod n. यहाँ पे n की वैल्यू हमारी राइट है कि नहीं अब हमें पता चलेगा. n की वैल्यू हमारी राइट है कि नहीं अब हमें पता चलेगा. ओके, सो I plus 1 mod n करोगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, सो दैट यहाँ पे I का ये वैल्यू 0 आए, राइट? सर I+1 mod n तो 1 आएगा. एग्जैक्टली. तो क्या होना चाहिए वैल्यू n की? 5 0. 5 होनी चाहिए, राइट? यस यस. राइट. सो मैंने पहले जो n की वैल्यू बोली थी वो गलत थी. थैंक गॉड समवन इज लिसनिंग. अगले ये लास्ट लेक्चर में एक डिवीजन में चला चुका हूँ पूरा, मैंने खत्म कर दिया, बट किसी ने ये बोला नहीं कि ये n की वैल्यू गलत है. ओके, सो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट? 5. दैट इज टोटल नंबर ऑफ फॉक. मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा सम 4 से गिना, लेकिन किसी ने मुझे बोला नहीं कि सर 4 का वैल्यू सही से नहीं आ रहा है. ओके, एग्जाम में मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछूंगा, सो मेक श्योर आप ध्यान दो. ओके, सो if so I plus 1 that is 4 plus 1 mod 5. okay, n की वैल्यू हमारी 5 रहेगी. okay, for others the calculation won't make any difference, right? दूसरों के लिए कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट खाली एक लास्ट वैल्यू के लिए कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा. सो n की वैल्यू 5 होगी तो हम उसे शिफ्ट कर पाएंगे S0 पे. ओके, सो इफ P0 वांट्स, ये हमने सिंक्रोनाइजेशन अचीव किया, राइट? S4 S0 to S4 सेमाफोर यूज करके. Now again, but are we avoiding deadlock? Let's say P0 आया, उसने क्लेम किया S0, यानी कि वो F0 फॉक उठाना चाहता है, इसलिए S0 की वैल्यू उसने कर दी 0. ओके, P1 आया, उसने S1 की वैल्यू 0 कर दी. P2 आया और वो ये इसके बाद यहाँ प्रीएम्प्ट हो जा रहा है, ये भी यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जा रहा है, ये भी यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जा रहा है. ओके, this is a, see in operating system any process can be preempted at any time, right? So P3 came, उसने S3 को लॉक किया, ओके, वो प्रीएम्प्ट हो गया. P4 आया, वो S4 को लॉक कर रहा है, वो प्रीएम्प्ट हो गया. Now if each and every process come, मतलब सारे प्रोसेस एक साथ भी आ जाते हैं, but do you think progress will happen here? क्या हुआ यहाँ पे? डेडलॉक हो जाएगा. Obviously deadlock हो गया, right? So यहाँ पे deadlock हो जा रहा है. So semaphore is giving a right solution. समझा नहीं सर. सेमाफोर से हमें सॉल्यूशन मिला हमारा, राइट? जहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है. ओके, वी हैव डन दैट. बिजी वेटिंग भी नहीं होगा एक तरीके से, नो आर्किटेक्चरल डिपेंडेंसी, बट प्रोग्रेस हो रहा है. सिंक्रोनाइजेशन के 4 रूल है ना, डेडलॉक आई गेस प्रोग्रेस के अंडर आता है. सो डेडलॉक यानी प्रोग्रेस नहीं हो रहा, राइट? इट विल गेट स्टक. सो सेमाफोर इज आवर सेमाफोर सॉल्यूशन इज गिविंग द परफेक्ट सॉल्यूशन, नो सर. राइट? तो इशू क्या हो रहा है कि सभी एक एक प्रोसेस को लेके चल जा रहे हैं एंड दे आर गेटिंग लॉक्ड, राइट? सो रेदर देन, और इसमें एक मैंने पॉइंट बहुत स्टार्ट में मेंशन किया था, दैट ईच एंड एवरी फिलोसोफर आर फर्स्ट पिकिंग अप द लेफ्ट फॉक. सबके सब राइट ही है, लेकिन उठा पहले लेफ्ट फॉक है, राइट? सो व्हाट वी विल डू, जो लास्ट प्रोसेस है, जो लास्ट फिलोसोफर है, उसको बोलेंगे भैया आप पहले राइट वाला उठाओ, पिक अप द राइट फॉक फर्स्ट, यू आर राइट ही, राइट? सो इसको बोलेंगे गो ऑलवेज पिक राइट फॉक देन गो फॉर लेफ्ट फॉक, राइट? सो इवन इन दिस सिनेरियो, अगर P0 ने S0 को लॉक किया हुआ है,
तो यहाँ पे भी P4 पहले क्या चेक करेगा, S0, बट S0 तो ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी लॉक्ड बाय P0, राइट? S0 इज ऑलरेडी क्लेम्ड बाय P0, मतलब S0 की वैल्यू ऑलरेडी जीरो कर दी गई है। सो P4 S0 पे क्लेम कर ही नहीं पाएगा, उसे जीरो वापस कर ही नहीं सकेगा, इसलिए P4 S0 चेक करेगा पहले। S0 क्या है, वैल्यू ऑफ S0 इज जीरो, हेंस देयर इज अ लॉक ऑन फॉक नंबर 0, राइट? सो यहाँ पे P4 कुछ एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, राइट? देयर वोंट बी एनी एक्सेस, ओके? यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि S0 की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, डन बाय P0। सो व्हाट विल हैपन, our value of S0 will be 0, S1 भी की 0 होगी, S2 की भी 0 होगी, S3 की भी 0 होगी, but S1 S4 की 1 होगी। Nobody has claimed S4, कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। Now that means what, कि पहले ये अकेला है जो पहले राइट फॉक यूज कर रहा है, ओके? ये अकेला है जो पहले राइट फॉक यूज कर रहा है, ओके? एंड हेंस ये कोई क्लेम नहीं करता है। सो इफ P3 विल कम, व्हेनेवर P3 विल कम, he will access S4, फिर दोनों फॉक उठाएगा एंड देन he will eat, एंड दोनों फॉक रखेगा। सो हियर फिर ये एक्सेस करेगा S3, खाएगा फिर रखेगा, हियर he will then access 2, खाएगा फिर रखेगा, then he can access S2, okay? So deadlock will be avoided, or deadlock ये avoided नहीं होगा, deadlock will be prevented, the deadlock will be preempted। Any doubt till here? पक्का? ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही लड़का जवाब दे रहा है, मतलब एक ही लड़का पढ़ रहा है, बाकी सब भी होंगे यहीं पे। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, ये सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँ, इंस्टेड ऑफ P0 मैं P3 को भी बोलूँगा तू पहले S4 चेक कर फिर S3 चेक कर, योर सॉल्यूशन विल बी वैलिड और नॉट, डेडलॉक होगा कि नहीं होगा? यस गाइस, देयर विल बी एनी सिनेरियो कि डेडलॉक होगा कि नहीं होगा? इंस्टेड ऑफ ओनली P4 आई सेड कि तुझे कंपनी मिलेगी P3 की, तू भी पहले राइट फॉक पहले उठाओ खाने से पहले, राइट? टू ईट फर्स्ट पिक द राइट फॉक। आई एम आस्किंग नाउ P4 and as well as P3, philosopher 4 and philosopher 3, I'm asking both of them to pick the right fork first. So would, or let's say, can I have deadlock here? Is there any possibility of deadlock in the current scenario? Yes or no? If yes, how or in which scenario? Yes guys, say, क्या होगा? सर P4 ने तो S0 और S4 पे लॉक कर दिया है, तो P3 तो फिर S4 पे लॉक नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा कि एस P1 क्या है, पहले S1 को देख रहा है, P0 क्या पहले S0 को चेक कर रहा है, P2 के S2 को, मतलब वो सब के सब पहले लेफ्ट फॉक उठाने जा रहे हैं, राइट? और सबके सब लेफ्ट फॉक उठाने जा रहे थे, तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा था कि पांचों पांच लेफ्ट फॉक उठा लिए, तो राइट फॉक तो ऑलरेडी किसी ने क्लेम किया हुआ है, तो डेडलॉक हो गया। P4 P0 की वेट करेगा, P0 P1 की वेट करेगा, P1 P2 की वेट करेगा, P2 P3 की वेट करेगा, P3 P4 की वेट करेगा, दैट इज अ सर्कुलर डेडलॉक, राइट? बट हमने सॉल्यूशन क्या दिया था, P4 वोंट पिक अ लेफ्ट फॉक, वो राइट फॉक पहले उठाने जाएगा, तो राइट फॉक ऑलरेडी P1 ने पिक, P0 ने उसका पिक किया होगा, राइट? P4 का राइट मतलब P0 का लेफ्ट, राइट? सो यहाँ पे भी देखो डायग्राम में ऊपर टॉप कॉर्नर में, तो P4 का राइट दैट इज F0 फॉक, P0 का लेफ्ट मतलब F0 फॉक, राइट? सो जो ऑलरेडी P0 ने क्लेम किया हुआ है, सो हमने एक बंदे को राइट ही बना दिया, दैट ही विल पिक अप द राइट फॉक फर्स्ट, तो डेडलॉक नहीं हो रहा है। But instead of, if I ask philosopher 4 as well as philosopher 3 to pick the right fork, तो डेडलॉक यहाँ पे अवॉइड होगा कि डेडलॉक यहाँ पे प्रिवेंट होगा कि नहीं होगा? मेरा क्वेश्चन ये है।
इज देयर एनी सिनेरियो कि यहाँ पे डेडलॉक हो? लेट्स से P0 आया, P0 ने पहले सॉरी P0 आया, P0 ने S0 को लॉक किया, P1 ने S1 को लॉक किया, P2 ने S2 को लॉक किया, यहाँ पे इसके बाद सब प्रीएम्प्ट हो रहे हैं। ओके, P3 ने S4 को लॉक किया, ओके P3 ने S4 को लॉक किया एंड P4 S0 को चेक करने गया बट वो ऑलरेडी लॉक्ड है, तो ऑब्वियसली वो कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ पे डेडलॉक नहीं हो रहा है। जैसे ही P3 आएगा in existence, as soon as P3 comes into the existence, he will access S3 and then he will release S4, और P2 के लिए तो S3 ओपन ही रहेगा, सो इवन P2 भी आएगा तो भी S3 को वो यूज कर पाएगा एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पे डेडलॉक नहीं हो रहा है। क्या आपके पास कोई सिनेरियो है जहाँ पे डेडलॉक हो पाएगा यहाँ पे? बिकॉज टिपिकली इन बुक्स इट इज सेड कि किसी भी लास्ट को, जो भी लास्ट प्रोसेस है उसको बोलो कि आप राइट वाला पिक फर्स्ट पिक करो, सो आपका डेडलॉक कभी नहीं होगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी दो प्रोसेस या दो फिलोसोफर को बोलता हूँ कि आप दोनों राइट वाला फॉक फर्स्ट पिक करो, तो डेडलॉक होगा कि नहीं होगा? यू अंडरस्टूड बुक का तो सॉल्यूशन? P4 और P0 के बीच में डेडलॉक होगा? P4 और P0 के कैसे बेटा? P0 अगर पहले आके इसे क्लेम कर रहा है, ओके P0 हैज क्लेम्ड S0, P4 इज नॉट गोइंग टू टच S0, सो वो सेमाफोर तो टच ही नहीं कर पाएगा। ओके सर। राइट, सो इज देयर एनी अदर डेडलॉक सिनेरियो? अगेन आई एम सेइंग, बुक में सॉल्यूशन बोलता है कि आखिरी एक फिलोसोफर को बोलो कि वो राइट वाला फॉक पिक करे। मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी के दो फिलोसोफर को बोलो कि राइट वाला फॉक पिक करे, तो डेडलॉक प्रिवेंट होगा कि नहीं? एनी आंसर्स, एनी गैसेस? गलत सही कोई गैस? नहीं होगा सर डेडलॉक। ओके, इट इज राइट कि यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। ओके, इन दिस सिनेरियो आल्सो डेडलॉक नहीं होगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं आखिरी तीनों को बोलता हूँ कि राइट ही बन जाओ, तो डेडलॉक होगा कि नहीं होगा? ओके, so this was last question for you guys. Best of luck for your exams. We will meet in next lecture अगर आप आते हो तो, and we will have a doubt solving session in that. Okay, goodbye, see you. Thank you for listening me and bearing with me.